गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मनोहर प्रताप। आज हम डिस्कस करेंगे अराविडो डायनेस्टी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की फर्स्ट डायनेस्टी जो थी संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के बाद में सलूक डायनेस्टी। सलूक के बाद में तलुक डायनेस्टी। कृष्णदेव राय जो था वो तलुक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। विजयनगर एम्पायर की हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी है अराविडो डायनेस्टी। तिरुमाल ब्रदर of Raja Ram Rai became the prime minister in 1570 AD. He removed the Sadashiv Rai and became himself the ruler. He founded the Aravidu dynasty. ठीक लगाने इस तरह से तिरुमल जो था उसने अराविडू डायनेस्टी को फाउंड किया था, जो कि राजा राम राय का भाई था। उसने तिरुमल ने अराविडू डायनेस्टी को फाउंड किया था। ग्रेजुअली विजयनगर वाज disintegrated and the independent states of the Mysore, Bindur and the Tanjore etc. come into existence. Wadiyar state was established in 1612 AD. This state continued its existence for 3 centuries, providing important contribution to the development of Hindu religion and the culture revolution in South India. Cultural progress, cultural contribution by Vijayanagar Empire has a specific importance in the history of medieval period of South India. The empire of Vijayanagar had considerable influence in the politics of South India, which lasted for 2 centuries. The rulers of this state extended their important contribution in the development of the culture life. Being under the control of Hindu state, this empire remained the main center of Hindu religion and its culture effects also. तो विजयनगर एम्पायर के जो मोस्ट ऑफ रूलर जो थे वो सब हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। इस वजह से विजयनगर एम्पायर में हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन या हिंदू ट्रेडिशन या उनके द्वारा जो बनाए गए आर्किटेक्चर जो थी उसको बहुत इंपॉर्टेंट मिला। द रूलर्स ऑफ विजयनगर इनक्रेज हिंदू रिलीजन एंड हिंदू कल्चर इन मेडिवल पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। द क्रेडिट ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर गोज टू द रूलर्स ऑफ विजयनगर. द रूलर्स ऑफ विजयनगर स्टिमुलेटेड एंड द विटलाइज्ड द कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग. टिक लगाना है, हालांकि ये नॉर्मल वर्ड हैं, सब में आएंगे, पर फिर भी टिक लगा देना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो थी जिसको विजयनगर एम्पायर के जो रूलर जो थे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था. कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड आर्ट एंड दस द एस्टेब्लिशमेंट एक्सीलेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट्स. इट इज़ कन्फर्म in the scriptures and the description by the foreign travelers also. Literary development. The literary work of Vijayanagar regime contained religious, biographical, literary and the emotional description and the expressions of life history and their impact on the society and the regulatory power of the administration. In the beginning of rulers like Bukka first contribute several written religious books, description and the commentaries etc. A brood of scholars under the leadership of the Sayana wrote commentaries on the code for all the 4 Vedas and several Brahmin literary work. यहाँ पे एक वर्ड आया कमेंट्रीज. कमेंट्रीज का मतलब होता है टिप्पणी, मतलब किसी एंशियंट बुक को या कोई भी लिटरेरी क्रिएशन है उसको पढ़ने के बाद में अपने खुद के व्यूज़ उसके ऊपर देना, उसको कहा जाता है कमेंट्री. Under the patronship of the Krishnadev Rai, Ishwar Dikshit wrote 2 commentaries on the chronicle named हेमकोट अगस्त्य. ठीक लगाना इसको भी, जैसे कृष्णदेव राय के टाइम पर ईश्वर दीक्षित ने कमेंट्रीज लिखी थी हेमकोट के ऊपर. Agastya wrote several books, literary composition. Out of some of them, the minister of the Krishnadev Rai named Salwa Timur wrote his commentary. With its criticism, the great ruler of Vijayanagar named Krishnadev Rai was an eminent poet and outstanding writer also, who had acquired brilliant knowledge in Sanskrit and Telugu languages. His famous literary achievement named टिक लगाना. कृष्णदेव राय जो था वो भी संस्कृत और तेलुगु का एक फेमस पोइट हुआ करता था. उसने लिखा था अम्मुकता मलयालम इन तेलुगु लैंग्वेज. It is one of the 5 legendary books. Krishnadev Rai composed a drama book in Sanskrit. Its name was the जाम्बवती कल्याणम. कृष्णदेव राय ने जो संस्कृत में ड्रामा लिखा था उसका नाम था जाम्बवती कल्याणम. There were 8 top-ranking literary poets in his court. Along with them, several other poets had also got shelter in his court. कल हमने डिस्कस किया था कि
कृष्णदेव राय की कोर्ट में जो तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड 8 स्कॉलर या पोइट जो रहते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। द मोस्ट फेमस ऑफ देम वाज अलसानी पेड्डम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक लगाना है। तो जो अष्ट दिग्गज जो थे, 8 फेमस जो पोइट जो थे, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो उसका नाम था अलसनी पेड्डन, हु वाज नॉन बाय द ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु पोइट्री, जिनको तेलुगु पोइट्री का ग्रैंडफादर कहा। द मेन लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इज स्वरोचित संभव। द सेकेंड पोइट वाज नंदितिमान। मतलब 8 जो पोइट जो थे उसमें से पहला जो था उसका नाम था अलसानी पेड्डन, दूसरा जो फेमस था उसका नाम था नंदितिमान, हु रॉट परिजात हरण। द थर्ड पोइट वाज द भट्टमूर्ति, हु रॉट द निरशंभुयलम। वन अनदर पोइट वाज हरिदास, हु हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द वैष्णव भक्ति, वैष्णवा डिवोशन। इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय देर वॉज फेमस पोइट ऑफ तेनाली रामा। इससे तब परिचित होंगे जरूर। ही रॉट द पांडुरंग महारत्य, टिक लगाना ये तेनाली रामा, जो कि एक सीरियल भी बनी है उसके ऊपर। वो कृष्णदेव राय के जो 8 जो पोइट जो थे उसमें से एक फेमस पोइट था, उसका नाम तेनाली रामा था और उसने बुक लिखी थी पांडुरंग महारत्य। हु इज कंपेयर्ड विद द बीरबल, द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ अकबर। जिस तरह से अकबर के कोर्ट में जो 9 जज रहते थे उसमें बीरबल सबसे फेमस था, उसी तरह से कृष्णदेव राय की कोर्ट में 8 जो पोइट रहते थे जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, उसमें फेमस जो था वो कौन था? तेनाली रामा।